Okay, good morning. So we'll start with a new concept today. The name of the topic is IUPAC nomenclature. So it is the first chapter in organic chemistry. So let's start with IUPAC nomenclature. Put the heading IUPAC nomenclature. Okay, so here, this is the name of the chapter. It is one of the most important topics of organic chemistry. Once you know this chapter thoroughly, then your other chapters will also be easy. Okay. So in organic chemistry, the main thing is what? The main thing is carbon. Right? So carbon containing compounds are studied in detail in organic chemistry. So before studying them in detail, we must know how to name them. There are various rules given by IUPAC. So we'll study those rules one by one in detail. Unless we know the rules, we cannot do nomenclature. So this is studied as a separate chapter, right? So the name of the chapter is what? IUPAC nomenclature. Now, what is this IUPAC? IUPAC is a governing body, okay, for the entire world. It tells us the rules that we all need to follow in order to maintain the uniformity across the world. So in all countries, the same rules will be followed, which are given by IUPAC. So this acts like a apex or head organization. Okay. Now let's start with the basics first. The basics are to be studied: condensed formula, okay, and bond line formula. These are the two main terms that we'll be using again and again. One is the condensed formula, the other one is the bond line formula. Okay. Before starting with these things, the thing you already know is that carbon is tetravalent. In chemical bonding, we have learned this. Carbon is tetravalent. What is the meaning of this? That means carbon forms four bonds. Carbon can form four bonds. So this has to be kept in mind when we do nomenclature also. Carbon forms four bonds. Okay, let's start with an example of condensed formula. And correspondingly, we will do the bond length formula also. Now, if I write something like this, if I write something like this, what is the meaning of this? This is a condensed formula written. Why is it condensed formula? Because here I'm not showing all the bonds. I'm just writing like this. Carbon. To the first carbon, there are three hydrogen atoms which are linked, right? To this carbon, I mean the first one, this one. There are three hydrogen atoms which are linked to this carbon. And also, apart from the three hydrogen atoms, this carbon is also linked to this carbon. Okay. So four bonds are complete. Similarly, coming to this carbon now. To this carbon, two hydrogen atoms are bonded, and also this carbon is bonded to this carbon as well as this carbon. So again, four bonds are complete. Okay. Next carbon, coming to this carbon. To this carbon, again, there are three hydrogen atoms which are bonded, and also apart from the three hydrogen atoms, it is connected to this carbon also. So again, this carbon has all four bonds complete. Right? So in this way, I can say that every carbon has its four bonds satisfied. Okay.
every carbon has its 4 bonds satisfied. Okay. So this such a formula is called condensed formula. Okay. If I write like this, the same thing if I write like this, if I show all the bonds in detail, okay, then it will be like this. Now see, this is the expanded formula, the entire structure shown in detail. If I look at this carbon, now you see this carbon has 3 hydrogen atoms which are linked, 1, 2, 3, and this bond is between these 2 carbon atoms. So this carbon has all 4 bonds which are complete. Similarly, this carbon has these 2 hydrogen atoms, and apart from these 2 hydrogen atoms, it has these 2 bonds with these 2 carbon atoms. So again, this carbon has all 4 bonds complete. Third carbon atom. Again, if you look at this carbon atom, it has 1 hydrogen, 2 hydrogen, 3 hydrogen, and also this bond is there with this carbon. So again, the third carbon atom has all 4 bonds complete. Right? Okay. So this same thing has been modified and written in the form of condensed formula. So henceforth we'll be using condensed formula, and every time it will not be possible for us to draw the expanded structures like I have drawn here. This was drawn just to explain to you, okay, but we will be using condensed formula more often. So if you look at this, this is the condensed formula for this compound. इसी का condensed formula कौन सा है? ये वाला, right? All right. अब condensed formula को देखने के बाद let's try to convert it to the bond line formula. इसी चीज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में. Okay. Now what is this bond line formula? Let's try and understand that. In the bond line formula, in carbon and hydrogen, we do not show them. We only show the bonds between carbon atoms. So this makes it a bit simpler to represent the same species. If I'm talking of the same species, that is this one, I'll try to draw the bond line formula for this. बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ करने का तरीका ये है कि आप किसी भी ऐसे पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ से ऐसे स्टार्ट करूँ और ऐसे जाऊँ तो ये एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है. दिस रिप्रेजेंट्स वन बॉन्ड बिटवीन व्हाट? दिस रिप्रेजेंट्स वन बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स. व्हाई? बिकॉज ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है लाइन का, ये एक कॉर्नर है, दूसरा कॉर्नर ये है. ये दो जो पॉइंट्स है, these two represent the 2 carbon atoms. So I am not writing C. कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है. I'll just write the 2 dots at the extreme ends of this line. This line represents a bond between the 2 carbon atoms. Okay. So I did not write C or H. I'm not supposed to write C or H in the bond line formula. I will not write carbon. I will not write hydrogen. I will just indicate the bonds between the carbon atoms. So if I'm writing this particular species, this is one end of this, which is nothing but this carbon atom. Okay. Then this one is nothing but this carbon atom. And this third carbon atom is also remaining. So I will draw one more line like this, and this end will represent the third carbon atom. Right? So if you look at this, I have not written any hydrogen atom here, nor I have written hydrogen atom here, and nor I have written hydrogen atom here. Hydrogen atoms are not shown. It is by default understood that if nothing is written, that means the other bonds are satisfied by hydrogen atoms. It is by default understood. Okay. Copy this down. So, Yes. so you're showing a single line to represent a single bond, right? So if there are double bonds, then okay. We will do one by one. Let's start with the single bonds, then we'll do. Okay, sir. Today is the first lecture, so I'll go a bit slow.
Okay, some of you may have done it in school, some of you may have done it in colleges, but I just go a bit slow. Sir, so entire organic chemistry is based around carbon. Exactly. Organic chemistry is based on carbon atoms, and also one more thing you have to keep in mind: any organic compound must contain carbon as well as hydrogen. These two are prerequisites. These two must be present in any organic compound. Okay. There can be other species also, but carbon and hydrogen need to be mandatorily present. It's mandatory for an organic compound to be consisting of carbon as well as hydrogen. So apart from carbon and hydrogen, other things can also be present. That's okay. That Sir, doesn't cause any problem. Sir, your voice is sir, lagging. your audio is cracking a lot. Hello? Hello? Is it okay now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Fine. So if you are writing a single bond, that means it is single bond. If there are two bonds, you will write double bond. So let's try and understand one by one. But the two things that you have to keep in mind. Sir, it's still cracking. Yes, sir. Oh. Okay. Hello? Okay. So let's go to another example. Okay, next example. If I look at the next example, I will see that, let's say I have this kind of species. Let's say I have this particular species. Okay. If I have to write the bond line formula for this, let's start. So this is one carbon, right? Second carbon. Between these two carbon atoms, there is a double bond. This is a double bond. Okay. This is a double bond. The other bonds are all single bonds. So if there is a double bond, I have to show the double bond, right? So if I'm starting like this, one corner, again like this, what is the double bond? This represents that I'm drawing these two carbon atoms, this one and this one, right? So these two carbon atoms I have drawn like this. Next, this carbon atom and this carbon atom. Between these two carbon atoms, there is a single bond. So I will draw a single bond, right? Now to this carbon, one is this bond coming out, so I will show that, and the other one is this bond coming out, so I can show that coming out like this. Right? So this will be the bond line formula for this species.
Sir, how do we know that the line is going in a different direction? Like, how does So it change? there Yes, is no sir. problem with direction. You can draw it in any direction. Direction is not a problem. You just need to see that the total number of atoms is same. For example, if I am having here one carbon atom, second carbon atom, so here also I have one carbon atom, and this is the second carbon atom. Similarly, this is second and this is third, so this is second and this is third. From the third only I have two bonds coming out. So from the third one I can show like this, one I can show like this. It is not mandatory for you to show in this direction. You can also show it like this. For example, even this is correct because ultimately it is same, right? From this only you are having two lines coming out. Which two lines? This one and this one. Why am I showing these two lines coming out? Because both lines are originating from this carbon atom. Clear? यार So Any doubt? there are no. सर आवाज नहीं आ रही सर लैग हो रही है आवाज सर, बीच में आपका आवाज थोड़ा सा क्रैक हो रहा है. Sir, it's manageable. I'm using earphones only. Earphones पे ही बात कर रहा हूँ मैं. सर, आपने अभी जो कुछ भी बोला सब कुछ सर क्रैक नहीं हो गया. बहुत मफल्ड आ रही है आपकी आवाज हाँ सर. पता नहीं क्योंकि कल तो आवाज आ रही थी जब मैं कल लेक्चर ले रहा था ना ट्वेल्थ का तो कल तो प्रॉब्लम नहीं था कुछ. ईयरफोन्स पे ही हूँ मैं अभी भी. सर इसके आगे कितनी स्लाइड्स हैं स्लाइड्स तो ऐसा क्या कुछ कैलकुलेट नहीं किया है, वो तो अभी जस्ट स्टार्ट किया है. फर्स्ट है. ये तो फर्स्ट है ना. So हाँ. so there are no hard and fast rules as to how the diagrams are to be drawn. नो 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 देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. आपको बस ये ध्यान में रखना है जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया कि कार्बन एटम जो है वो बराबर से दिखाओ आप. फॉर एग्जांपल देखो इफ आई एम लुकिंग एट दिस वन फर्स्ट एग्जांपल पे वापस आते हैं. ये वाला एग्जांपल somebody may start like this and go like this. That's also correct because ultimately तो मतलब वही हुआ ना 1 2 3. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ऊपर दिखाओ कि नीचे दिखाओ कि साइड में दिखाओ. सर, आपने अभी क्या बोला? सर क्लियर नहीं आ रही है. सर आपका वॉइस क्लियर सर नहीं आप क्या बोल रहे हैं नहीं समझ आ रहा. हाँ सर. Let me rejoin the meeting. Okay. Hello. Okay.
सो इट डजंट मैटर कि अगर लाइंस को ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, दैट डजंट मैटर. वो ऊपर है या नीचे है, दैट डजंट मैटर. ओके, ओके सर. अभी ठीक है आवाज? Sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो ये एग्जांपल्स, जो दो एग्जांपल्स है, ये नोट डाउन कर लो. ये पहला वाला एग्जांपल था, दिस इज द सेकंड वन, राइट? One more example, let's try. Right. This is another example. Third one. Again, we'll start like this. Let this be the starting point. ऐसा कर दूंगा मैं, right? That means I'm representing this bond between these two carbon atoms, right? Now, this carbon atom, that is this one, has 3 bonds. It's a triple bond. This is called what? Triple bond. Sir, do we have to always start from the extreme left of this equation? Yes, you can start like that, or you can start from the extreme right hand side. But extreme से ही चालू करना है. या तो extreme left hand side से चालू करो, या extreme right से चालू करो, right? ऐसा भी कर सकते हो चालू, ऐसा भी कर सकते हो चालू. That doesn't matter. Okay. So ये हो गया. ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? ये वाला जो है, ये वाला है, ये वाला. ये वाला कौन सा है? ये वाला है, ये वाला. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट? No, sir. Okay. Now, this carbon atom is linked to this third carbon atom with a triple bond. अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन. Now, in chemical bonding, you have studied hybridization, and you know that if a carbon atom has 3 bonds, that is triple bond, then that carbon atom is sp hybridized. Right? So this carbon atom is sp hybridized. sp hybridized क्यों है? क्योंकि उस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है. P bond. Okay. Now, if that particular carbon atom is sp hybridized, that means around that particular species वो जो ज्योमेट्री आएगी वो लीनियर ज्योमेट्री आएगी. करेक्ट? sp है तो वो लीनियर ज्योमेट्री आती है. इसका मतलब अभी मुझे ट्रिपल बॉन्ड को लीनियर दिखाना पड़ेगा. अभी मैं ट्रिपल Sir, बॉन्ड I को did not understand. देखो, अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के साथ तो कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड. यहाँ तक कोई डाउट है? So हमने chemical bonding की नहीं है. Yes, सर sir. ये चीज नहीं पढ़ा. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया है तो बोल. ओके, तो वो पहले बोल देते. ठीक है, आई टेल यू, जस्ट रिमेंबर, मैं शॉर्टकट दे रहा हूं अभी यहाँ पे, कि अगर तुम्हारे पास कार्बन एटम है जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, कोई भी कार्बन एटम जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp. अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इग्नोर इट फॉर द टाइम बीइंग, उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं. बट जस्ट इतना याद रखो कि अगर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे sp, राइट? और अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे sp2. बस. ओके, इतना फिलहाल याद रखो. नाउ, क्यों मैंने ये बताया, उसका एक ही रीजन है. उसका रीजन ये है कि अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है कोई भी कार्बन एटम, तो इसका मतलब वो लीनियर होगा. वहां का जो शेप होगा, इट इज लीनियर. व्हाट इज लीनियर? लीनियर मतलब मैथमेटिकली व्हाट वी से 180 डिग्री इज द एंगल. सो अगर मुझे लीनियर करना है तो मैं टेढ़ा नहीं बना सकता ट्रिपल बॉन्ड को. कहने का मतलब ये था, बस इतना ही था. ओके, सो ट्रिपल बॉन्ड को टेढ़ा नहीं बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा सीधा ही बनाना है. देखो, मैंने भी सीधा बनाया है. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? एनी डाउट सो फार? No. सर हम लोग ये कैसे डिसाइड करें कि ट्रिपल बॉन्ड के बाद जो डॉट आएगा कार्बन एटम के लिए वो किस पर डालना है? नहीं, डॉट तो मैं दिखा रहा हूँ. डॉट एक्चुअली डालना नहीं है, वो डॉट मैं फिलहाल ये शुरुआत है इसके लिए डॉट करके तुमको समझा रहा हूँ. तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के इधर डॉट वॉट का ऐसा कुछ झंझट नहीं है? नहीं, डॉट डालना है तुम्हारे अपने कन्वीनियंस के लिए.
डॉट इज नॉट मैंडेटरी, वो अपना जस्ट अभी शुरुआत है, इसके लिए कार्बन एटम कहाँ पे है वो दिखाने के लिए डॉट डाल रहा हूं मैं, ठीक है। डॉट डालने की कोई ऐसी कंपलसरी नहीं है। अब देखते हैं, नाउ लेट्स कम टू दिस अगेन वन बाय वन, एक एक कार्बन एटम को। दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम, आई एम नंबरिंग जस्ट रैंडमली, आई एम नंबरिंग, ओके। 1, तो ये कौन सा है, ये वाला है तुम्हारा 1। ये जो दूसरा वाला कार्बन एटम है इसको मैं नंबर डाल रहा हूँ 2, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हाँ, नथिंग एल्स। यहाँ पे जो ये है इसको मैं डाल रहा हूँ 2। अब ये जो है इसको मैंने डाला 3, तो अभी ये कौन सा है, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया मैंने 2 के साथ। अब ट्रिपल बॉन्ड अगर लगा ही दिया बाय डिफॉल्ट मतलब वो कार्बन ही है एंड में, क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम लोग कार्बन तो लिखेंगे नहीं, सो वी विल नॉट राइट C और H, बस हो गया। मतलब ये जो है ट्रिपल बॉन्ड के बाद जो ये स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ये स्पेस में कौन है, ये स्पेस में ये वाला थर्ड कार्बन है, 3 वाला कार्बन। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज 3, ओके। सो अगर मैं उसको अच्छे से दिखाऊं, I can also show it like this, the entire thing. हो गया, okay. Any doubt? Any doubt? Anybody has? सर ये डायग्राम को क्या बोलते हैं? Any doubt? Hello? सर एक बार आप ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। सर आप चैट कर सकते हैं। हाँ हाँ, बट ये वाला कंपाउंड क्लियर है ना, लास्ट वाला जो ट्रिपल बॉन्ड वाला हुआ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. If you want, you can take screenshots. That's not a problem. सर डबल बॉन्ड लीनियर नहीं होता ना? नहीं नहीं, डबल बॉन्ड लीनियर नहीं होता है, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो लीनियर होता है, sp होता है ट्रिपल बॉन्ड। सर थोड़ा और ऊपर। हाँ, अच्छा और ऊपर जाऊं? हाँ बस, थैंक यू सर। मैं बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि जो आपके नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस होते हैं, काफी क्वेश्चंस में सिर्फ बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला ही दिया रहता है। बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला अगर मालूम है तो आप आसानी से उसको कर सकते हो आगे। अभी तक हम लोगों ने नोमेनक्लेचर चालू ही नहीं किया है, वी आर जस्ट डूइंग बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला। सर एक बार जो कंपाउंड्स आपने लिखी उनके नाम लिख दो ना। नहीं नहीं नहीं, अभी नाम नहीं लिखूंगा, वो तो नाम पढ़ाऊंगा तब लिखूंगा ना, अभी नाम पे फोकस मत करो, फिलहाल बस बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला देखो। नाम तो कराएंगे ही पूरा, तो अगले 5 लेक्चर सिर्फ नाम पे ही चलेगा। सर अभी हम फॉर्मूला से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिख रहे हैं, कंडेंस फॉर्मूला से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक बार वाइस वर्सा का भी करवाना। करेंगे करेंगे, we will do that right now. Let me do one more example and then we'll do. Okay, let's go ahead with one more example. Coming to this one, अभी अच्छे से इसको देखो। अगर ये वाला है मानो क्वेश्चन, ये वाला अगर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले रहा था, क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल है, फिर से हम लोग कोशिश करेंगे। फिर से ये वाला कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो मतलब वो उसको लीनियर दिखाना पड़ेगा। चलो चालू करते हैं, पहले लीनियर दिखा दिया, इसको सीधा एक लाइन बना दिया ट्रिपल बॉन्ड का, राइट। सो ये पॉइंट जो है यहाँ पे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई एम श्योर, ये वाला पॉइंट ये कौन सा है, ये वाला कार्बन है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला है सेकंड कार्बन एटम। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे तुम्हारा थर्ड कार्बन एटम है, सेकंड और थर्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ से सेकंड और थर्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। क्लियर? सो दिस डॉट जो है वो कौन है, वो थर्ड वाला कार्बन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ऐसा क्लियर हो गया सब, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब थर्ड और फोर्थ के बीच में फिर से डबल बॉन्ड है, तो थर्ड और फोर्थ के बीच में फिर से डबल बॉन्ड है, राइट। सर अगर हम कंडेंस से इधर बॉन्ड लाइन में जा रहे हैं तो हम सीधा मतलब बस बॉन्ड दिखा सकते हैं ना, मतलब कंडेंस में सारे एलिमेंट्स को हटा दे एंड बस बॉन्ड्स दिखा दे।
तो फिर वो कंडेंस नहीं रहेगा ना, तो फिर बॉन्ड लाइन ही बन गया ना वो। अगर अब वही कार्बन और वही बोल रहा हूँ वही बोल रहा हाँ, हूँ। तो कंडेंस को देख के तो तुम बॉन्ड लाइन बनाओगे ना। ओके अगर बॉन्ड लाइन बनाने बोला तो कंडेंस को देख के ही बॉन्ड लाइन बनाओगे ना। कंडेंस फॉर्मूला दिया रहेगा और उसको कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे बॉन्ड लाइन में। ओके सर। सो सर जो नंबरिंग कर दिया मैंने। एनी डाउट? सर वो जो लास्ट वाला जो है ना डबल बॉन्ड है उसको आपने लीनियर हाँ, वो जस्ट मैंने ऐसे दिखाया है, नहीं भी दिखाना है तो भी चलेगा। ऐसा करो, राइट, फिर ऐसा करो और फिर ऐसा कर दो। हाँ सही हो गया। सो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4। एनी डाउट? सर ये जो लीनियर वाला है बस ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग को सीधा बनाना है। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड को कभी भी टेढ़ा नहीं दिखाना। एक्चुअली देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी दिखा नहीं सकते, कभी-कभी दिखाते हैं बुक्स में, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू कैन कीप इट इन योर माइंड। ट्रिपल बॉन्ड को ना हमेशा सीधा दिखाना ही सही रहता है, बिकॉज़ ट्रिपल बॉन्ड इज अ लीनियर बॉन्ड। सर थोड़ा ऊपर लो। हाँ, ला रहा हूँ। ये डॉट्स जो है, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए फिलहाल हम बना रहे हैं। आपको डॉट्स नहीं बनाने हैं तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये वाला जो है बनाया है, ये जो एंटायर वाला बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एस को रिप्रेजेंट करता है। सर अगर वो सर डॉट्स नहीं बनाएंगे तो सर वो कंटिन्यूस होगा क्या लाइन? हाँ, डॉट नहीं बनाओगे बस ऐसा ही होगा। देखो मैं डॉट के बिना बना रहा हूँ अभी इसी चीज को, सेम कंपाउंड को। ये ट्रिपल बॉन्ड है लीनियर, राइट, राइट। ओके सर। राइट, कुछ लोग इसको ज्वाइन भी कर देते हैं, दैट्स आल्सो ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन ज्वाइन लाइक दिस आल्सो। बट डॉट से शुरुआत में प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा है, और कुछ नहीं। एनी डाउट? क्लियर हो गया? चलो ट्राई वन मोर एग्जांपल। लेट्स से दिस इज अ वेरी कॉमन वन। नाम तो करेंगे ही हम लोग 7 के, राइट। Try this one, all of you, there I'll write. Anybody has any doubt so far? अगर डाउट है बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला में तो बताओ। सर इस फॉर्मूला से हाइड्रोजन को कैसे मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, हाइड्रोजन नहीं है, नहीं दिखाना है हाइड्रोजन को, तो बाय डिफॉल्ट इट इज प्रेजेंट। अब अगर तुमको ये पहचानना है कि कितने हाइड्रोजन एटम्स है एक एक कार्बन के साथ, तो वो हम लोग अभी करेंगे, दैट विल डू राइट नाउ। फिलहाल लेट्स कन्वर्ट दिस वन टू बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला। आई विल कन्वर्ट दिस। सो अगेन, राइट, लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्जन। मानो मैंने ऐसा दिखाया, राइट, इसको ऐसे दिखाया, फिर ऐसे दिखाया, वो एकदम सर वो स्ट्रेट लाइन में बनाना है या फिर वो हेक्सागोनल शेप में करना है? एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? हेलो, हेलो हाँ, क्या बोल रहे हो? सर ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला एक स्ट्रेट लाइन में बनाना है या फिर वो हेक्सागोनल शेप का बनाना है? ऐसा भी बना सकते हो ना, ऐसा ऐसा, राइट। ये वाला जो है, दिस विल बी व्हाट, दिस कार्बन, राइट, दिस इज द सेकंड कार्बन, दैट इज दिस वन, दिस इज द थर्ड कार्बन, and this one is the fourth carbon.
1 2 3 4 1 2 3 ओके अभी उल्टा जाते हैं, उल्टा जाने की कोशिश करते हैं अभी। ओके ओके एनी डाउट इन दिस एग्जांपल, जो लास्ट वाला एग्जांपल लिया? नो सर। नो सर। वो 1 2 3 4 क्लियर है? कैसे समझ में आ रहा है कौन से कार्बन एटम्स है? यस यस सर। Okay, fine. Now let's go the other way around. I'm making one bond length formula. Let's try to get to the condensed formula. So we'll do that now. अगर मानो मैंने ऐसा लिख दिया कुछ, ओके अब देखो ऑक्सीजन है, O का मतलब वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन को बस हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन बाकी एटम्स को लिखना पड़ेगा. That is why I have written OH. That H is connected to oxygen and not to carbon. That is why I have to write hydrogen also. I repeat, कोई भी हाइड्रोजन एटम अगर ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन या कोई भी दूसरे स्पीशीज के साथ लिंक्ड है, जैसे OH, SH ऐसा कुछ है, तो हमको वो हाइड्रोजन एटम लिखना पड़ेगा. We have to show that. लेकिन जो कार्बन और हाइड्रोजन अटैच्ड है, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है, वो लिखने नहीं होते हैं बॉन्ड लाइन में. ओके अगर हमको अभी रिवर्स जाना है, सो लेट्स सी नाउ. देखो अभी एक्सट्रीम एंड पे तो यहाँ पे कार्बन होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन है, तो पहले मैं कार्बन लिखता हूँ. इस कार्बन के साथ ऑलरेडी डबल बॉन्ड बने हुए हैं, तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना दूंगा मैं. इस कार्बन के साथ देख रहे हो ना, ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके लिए मैंने भी ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड बना दिया. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस डबल बॉन्ड नथिंग एल्स इज शोन एट दिस. इसके साथ सिर्फ डबल बॉन्ड ही दिखाया गया है और कुछ दिखाया गया नहीं. इसका मतलब जो दिखाया गया नहीं है वो हाइड्रोजन एटम्स ले लेगा स्पेस, राइट. कार्बन के साथ हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है, इसके लिए यहाँ पे दिखाया नहीं है. तो अगर मुझे बॉन्ड सेटिस्फाई करने हैं कार्बन के, तो वो कैसे मैं सेटिस्फाई करूंगा? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? आई हैव टू लुक फॉर those many hydrogen atoms so that I get 4 bonds complete around carbon atom. Already 2 bonds complete है कार्बन के, अगर मैं और 2 हाइड्रोजन जोड़ दूंगा तो this will be a tetravalent carbon, and now I can say this carbon has all its 4 bonds satisfied. Coming to this carbon, this one, okay, ये कौन है? ये वाला है. अब इसके साथ एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, दिख रहा है, और एक बॉन्ड आपको दिख रहा है O के साथ. तो चलो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक बॉन्ड O के साथ. OH है तो OH लिख देता हूँ. बट इफ यू लुक एट दिस कार्बन 1 2 3 सिर्फ 3 बॉन्ड्स इसके सेटिस्फाइड हुए हैं, लेकिन कार्बन के तो 4 बॉन्ड सेटिस्फाई होने चाहिए. इसका मतलब चौथा जो बॉन्ड है वो कौन सेटिस्फाई कर रहा है? वो एक चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया. एनी डाउट? नो सर. हाँ अल्कोहल है ये. OH मतलब अल्कोहल. डोंट वरी, वी विल डू एवरीथिंग. धीरे धीरे जाएंगे, सबको समझ में आना चाहिए, तो इसके लिए मैं फिलहाल नाम नहीं बता रहा हूँ किसी का भी. अभी सिर्फ बॉन्ड लाइन फार्मूला, कंडेंस फार्मूला खत्म करते हैं. सर ऊपर वाले एग्जांपल में आपने 2 डायग्राम्स बनाया ना, तो सर कौन सा बनाना रहता है? मतलब कौन सा वाला? ये बॉन्ड लाइन वाले?
हाँ सर, बॉन्ड लाइन वाला। हाँ ठीक है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुमको मैं बस पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट इफ यू लुक एट बुक्स, ज्यादातर बुक्स में क्या दिखाते हैं ना, ऐसा दिखाते हैं। मैं तुमको बताता हूँ कौन सा दिखाते हैं, ज्यादातर बुक्स में ये वाला दिखाते हैं, मतलब इन दोनों में से ये जो सेकंड वाला है ये वाला दिखाते हैं सब। ओके, और सिमिलरली नीचे वाले में? इसके लिए, नीचे वाले के लिए ये वाला ज्यादा दिखाते हैं। तो वो तुमको बस कुछ नहीं है, बस बुक में रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से है। द पॉइंट इज दैट यू मस्ट बी थरो विद द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वहां पे गलतियां नहीं होनी चाहिए। बाकी तुम अगर टेढ़ा बना दिया या सीधा बना दिया, उससे तुम्हारे मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चन पेपर में, वैसे वो जेई हो, सीईटी हो, नीट हो, कुछ भी हो, वो कभी कभी ऐसा तुम देखोगे कि सीधा बनाने के बदले में उन्होंने टेढ़ा बना दिया, या टेढ़ा बनाने के बदले में सीधा बना दिया। That's okay. That's not considered a mistake. That's okay. But you should never go wrong in the number of bonds or in the number of carbon atoms. That should be correct. Okay. Okay. Any doubts so far? No. Okay. अभी आवाज क्लियर आ रही है सबको? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. All right. One more example. We will again convert the bond line formula to condensed formula. Okay. बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से कंडेंस फॉर्मूला करते हैं अभी। चलो, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से कंडेंस फॉर्मूला। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर मैंने ये लिखा, so let's try to convert this to condense formula. ये वाला एग्जांपल है। राइट, फिर से हम लोग करेंगे अपने हिसाब से क्या नंबरिंग। मान लेते हैं इसको अगर कुछ कार्बन एटम 1, चलो इसको लिख दिया सी, ये वाला। अब देखो इस कार्बन एटम से 3 अलग अलग लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो हम लोग भी 3 अलग अलग लाइंस ओरिजिनेट कर देंगे। राइट, अब लाइन के एंड में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक्सट्रीम एंड पे कार्बन ही है ना, तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। राइट, ये जो कार्बन एटम है 1 नाम दिया, अगर मैंने इसको 1 नाम दिया, तो 1 से 3 लाइंस आ रहे हैं ना, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ऊपर वाला। सो ये 3 लाइंस के लिए मैंने 3 देखो लाइंस बॉन्ड्स ड्रॉ किए। एक्सट्रीम एंड्स पे कुछ नहीं है, मतलब कार्बन है, जैसे यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो यही इसके लिए 3 बनाए हैं, 1 2 3। ओके, अभी इस वाले कार्बन के साथ 1 के साथ देखो ये वाला भी एक लाइन है, ये वाला एक बॉन्ड है, ये वाला, तो उसके लिए ये बना दिया। राइट, so this carbon is what now we are at, so now we are at this carbon, ये वाला। इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो हम लोग भी डबल बॉन्ड बना देंगे। फिर ये वाला कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड है, राइट, तो हम लोग भी एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे। सिंगल बॉन्ड बना दिया, मतलब ये एंड में कौन है, फिर से कार्बन है, तो एंड में फिर से कार्बन बना दिया। Now let's satisfy the bond of every carbon atom. How will we satisfy the bond? By using the hydrogen atoms, right? Okay. अब ये वाला कार्बन के बाद एक ही बॉन्ड है, तो कितना हाइड्रोजन रहेगा, 3, तो 4 हो गए। ये वाला कार्बन है, इसके पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन चुके हैं। रिपीट कर सकते हैं कि आपका वॉइस लैग होकर कर आ रहा है? सर वॉइस फेल से क्रैक। Okay. Hello. Now I am repeating this part. ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन, इसके साथ मैंने 3 हाइड्रोजन लिखे, 3 हाइड्रोजन एटम। व्हाई? बिकॉज़ ये एक बॉन्ड कंप्लीट था, तो और 3 हाइड्रोजन एटम जोड़ने थे 4 बॉन्ड बनाने के लिए। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के बाद ऑलरेडी 3 बॉन्ड बने हैं, एक
2 3 3 बॉन्ड कार्बन के आजू बाजू है, लेकिन चौथा बनाएगा कौन? हाइड्रोजन। So I have added one hydrogen. Next, coming to this carbon. Again, this carbon के around कितने bonds हैं? सर Hello. हाँ सर, आवाज थोड़ा लैग हो रहा है। Okay. ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे फिर से एक हाइड्रोजन आएगा। ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन के साथ ऑलरेडी एक बॉन्ड बन चुका है, एक बॉन्ड। तो और 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 बॉन्ड कंप्लीट होंगे। So I will add again 3 hydrogen. ये वाला कार्बन फिर से इसके बाद एक ही बॉन्ड है, तो और 3 बॉन्ड आने चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन एटम। ये वाला कार्बन इसके साथ भी एक बॉन्ड है, तो फिर से 3 हाइड्रोजन एटम। ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ? हेलो सर। हाँ हेलो। सर आप और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो बीच बीच में क्रैक होकर आ रहा था आवाज आपका। आपका आवाज देखिए। ओके ठीक है, मैं कृतिका मैम को बोलता हूँ एक बार फिर से। ओके, नाउ दिस कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के साथ एक बॉन्ड था, तो मैंने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम जोड़ दिए। इस कार्बन के साथ 2 यानी ये वाला बॉन्ड और एक ये था, 3 थे, इसके लिए एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। हमको तो 4 ही बनाना है ना टोटल। लाइकवाइज ये वाला जो कार्बन एटम है, आवाज बहुत क्रैक हो रही है अभी भी। ओके वेट, तब तक ये वाला ट्राई करो एग्जांपल में, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स ट्राई दिस। इसको ट्राई करो एक बार खुद से।
हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या आवाज है? सही है आवाज अभी? यस Yes, सर। Yes, sir. Okay, so let's try this one, the next one, right? फिर से हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ से। ये वाला जो कार्बन है, राइट, यहाँ पे लिखेंगे उसको C। इसी कार्बन के साथ ओरिजिनेट हो रही है ये वाली लाइन, 1 बॉन्ड, दैट मीन्स यहाँ से मैं लिख दूंगा 1 बॉन्ड। एंड ऑफ दिस लाइन मतलब क्या? फिर से कार्बन, यानी यहाँ पे फिर से कार्बन आ जाएगा। नीचे से एक NH2 है तो नीचे से एक NH2 कर दूंगा मैं, राइट। फिर यहाँ से और एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड को लिखूंगा यहाँ पे C, ये वाला है C, ये वाला C। उस C के साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है Cl, तो इस C के साथ यहाँ पे हम लोग क्लोरीन जोड़ देंगे। फिर देखो आगे, इस कार्बन के साथ फिर से एक सिंगल बॉन्ड है तो फिर से एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, राइट, ये वाला। यहाँ से एक डबल बॉन्ड है नीचे की ओर, तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड है नीचे की ओर, राइट। नीचे की ओर मतलब ये क्या है? डबल बॉन्ड, और फिर नीचे मतलब ये भी कार्बन ही है ना, यहाँ पे कार्बन बना दिया। फिर यहाँ से एक फिर से ओरिजिनेट हो रहा है तो फिर से यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है। So this gives me the skeleton. Now I have to satisfy the bonds using hydrogen atoms. ये कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है तो मैं यहाँ पे इसलिए 3 हाइड्रोजन एटम्स जोड़ दूंगा, हो गया 4 बॉन्ड्स। सर अगर वो डबल बॉन्ड मतलब ऊपर बना दिया और वो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे का कोई इशू नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डोंट वरी अबाउट ऊपर नीचे बॉन्ड्स बनाना। ऊपर बनाओ, नीचे बनाओ, साइड में बनाओ, नथिंग विल हैपन। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन द बोर्ड एग्जाम आल्सो, डोंट वरी। ओके, नाउ कमिंग टू दिस कार्बन एटम। अब ये कार्बन के साथ ऑलरेडी देखो 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो चुके हैं, 1 2 और नीचे डबल बॉन्ड, तो हो गए 4 बॉन्ड्स। ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स इस कार्बन एटम के हो चुके हैं, तो यहाँ पे और कोई हाइड्रोजन एटम मैं नहीं डालूंगा। ओके, कमिंग टू दिस वन। अब ये जो नीचे वाला कार्बन है इसके साथ ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बन चुके हैं, लेकिन 2 मतलब क्या, और 2 बाकी है, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे जोड़ दूंगा मैं। Coming to this carbon, already 3 bonds are made around this. In total, there are 3 bonds. So the 4th one will be made by hydrogen. Coming to this one, already 3 bonds are made. So the 4th one will be made by hydrogen. Coming to this one, already 1 bond is made. So the remaining 3 will be made by hydrogen. हो गया ये कंडेंस फॉर्मूला इसका। Any doubt? No, sir. Is it absolutely clear to everybody? Any doubt in this? नो सर। और एक एग्जांपल चाहिए क्या? दो और एक एग्जांपल या नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊं? सर और एक एग्जांपल दो ना। सर एक दे दीजिए। ओके, एक देता हूं मैं फिर से। Try to make the condensed formula for this one. Try to make the condensed formula for this one. ये ऑक्सीजन है, O. O means oxygen. So let's start. अब कोई बोलेगा यहाँ से चालू कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? यहाँ से भी कर सकते हैं, चलो कहीं से भी करो, या तो यहाँ से करो या फिर यहाँ से करो, अल्टीमेटली आंसर सेम ही आएगा। ओके, सो दिस इज 1 कार्बन, सो आई राइट कार्बन। मैं अभी राइट से चालू कर रहा हूँ दिखाने के लिए सबको। तो ये वाला चालू किया मैंने, ये कार्बन है तो मैंने कार्बन लिखा, यहाँ पे कार्बन है। उस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का है, उस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का बना दूंगा। ऑक्सीजन के साथ फिर से एक सिंगल बॉन्ड है ये वाला कार्बन का, ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो फिर से ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना के ये वाला कार्बन बना दूंगा, राइट। ये वाला कार्बन
के साथ अभी डबल बॉन्ड भी एक है, तो चलो ये वाला कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बना दूंगा, बन गया ये वाला कार्बन अभी डबल बॉन्ड बना, राइट। इस कार्बन के साथ फिर से एक सिंगल बॉन्ड है, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है ये वाला, तो वो बनाऊंगा फिर मैं, राइट। सो दिस कार्बन इज नथिंग बट दिस वन। स्केलेटन बन गया फिर से। सर हमें स्टेबल करने के लिए सिर्फ H को ऐड करना है ना? हाँ हाँ हाँ, बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स को ही ऐड करना है। लेट्स ऐड वन बाय वन। यहाँ पे कार्बन के पास एक ही बॉन्ड बना हुआ है, सो आई विल मेक इट H3। नाउ इट इज कंप्लीट। एनी डाउट एनीबडी हैज? क्लियर टू एवरीबडी? ओके। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के साथ कुछ बॉन्ड वगैरह बनाना नहीं है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स कंप्लीट है। ओके। नेक्स्ट कार्बन, हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बॉन्ड्स को ही सेटिस्फाई करना है। अब इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स बने हैं, यानी चौथा वाला हाइड्रोजन करेगा। इसका भी वही सीन है, राइट। फिर इसके पास आते हैं, इसका क्या कर देंगे, 3 हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि एक बॉन्ड बना हुआ था। दिस इज कंप्लीट। नाउ दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला। Any doubt anybody has? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैं और एक चीज बताता हूँ, कितना देखो ये फनी है। इसी चीज को और कोई बोलेगा स्टेज 3 लिखो ऐसे, राइट। ये भी सही तरीका है। कहने का मतलब क्या है, either you write C के इस तरफ H3 or you write on the right hand side H3, both are correct। ये भी सही है, ये भी both। ओके। देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन को मैंने राइट हैंड साइड लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है कार्बन के। अब यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन को मैंने कार्बन के राइट हैंड साइड पे लिखा है। दैट इज ओके, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सर अगर वो ऑक्सीजन के बाद एक और कार्बन नहीं आता तो वो डबल बॉन्ड हो जाता ना? हाँ, ऑक्सीजन हैज टू फॉर्म 2 बॉन्ड्स, वो तो है। ऑक्सीजन के पास टोटल 2 बॉन्ड्स होने चाहिए, राइट। How will determine that which element requires how many bonds? नहीं, वो तुमको डिटरमाइन करना इसमें नहीं है ना, तुमको तो बस कार्बन के बॉन्ड्स को ही सेटिस्फाई करना है हाइड्रोजन के साथ, दैट्स ऑल। यू डोंट हैव टू ऐड। So पर यहाँ ऑक्सीजन भी आ गया ना? नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन पे यहाँ भी कंडेंस फार्मूला, आई मीन जो बॉन्ड लेंथ फार्मूला था, यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तो है ही ना, ये दो तो बने हुए ऑलरेडी, वो तो बने हुए रहेंगे ना। जो भी तुम्हारा बॉन्ड लाइन का फॉर्मूला में ऑक्सीजन के जितने बॉन्ड्स बने हुए हैं उतने ही तुम बॉन्ड्स बनाओगे कंडेंस फार्मूला में भी। तुमको अलग से कुछ ऐड नहीं करना है ऑक्सीजन के साथ, तुमको जो ऐड करना है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ ऐड करना है। रिमेंबर दिस। सर मतलब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में वो जो भी एलिमेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट देंगे C और H को छोड़ के, तो वो ऑलरेडी स्टेबल रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। Yes, yes. You don't have to add anything extra to any other element except for carbon. Remember this. Okay, sir. All right. Okay. और एक बार लास्ट में एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे हम लोग उल्टा जाएंगे, यानी पहले कंडेंस दे के रखता हूँ मैं। कंडेंस अगर इसको बॉन्ड लाइन में आपको बनाना है, देखते हैं कैसे बनाएंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट ये जो देखो, इसका मतलब समझाता हूँ, CH3 होल ट्वाइस के बाद जो C है, दिस मींस दैट इस कार्बन के साथ, ये वाले कार्बन के साथ
there are 2 CH3 attached. Okay, if I write CH3 twice और उसके बाद मैं कार्बन लिखता हूँ, मतलब इस वाले कार्बन के साथ जिसको सर्किल किया है उस वाले कार्बन के साथ there are 2 CH3 groups linked. मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं अच्छे से दिखाऊं तो ये वाला कार्बन के साथ एक CH3, दूसरा भी CH3, क्योंकि CH3 ट्वाइस है. इसी कार्बन के साथ 2 CH3 are attached. ओके, फिर आगे का तो ठीक है, आगे का तो ऐसा ही है. दैट मींस इसको मैंने ऐसे लिख दिया. अभी थोड़ा हम लोग के लिए आसान पड़ेगा समझना. सो CH3 ट्वाइस का मतलब क्या है कि ये 2 CH3 जुड़े हुए हैं. किसके साथ? इस वाले कार्बन के साथ. क्यों इस वाले कार्बन के साथ? क्योंकि इसके साथ ये बॉन्ड बना हुआ है. दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पे 2 है. देखो 2 हो गया. राइट. Let's convert this to the bond line form. Right. Okay. देखो ये वाला जो है इससे चालू करते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म. डॉट मारता हूं एक कन्वीनियंस के लिए. ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डॉट इस वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करता है. इस वाले कार्बन के साथ क्या है जुड़ा? एक बाहर वाला बॉन्ड है, तो यहां से एक बाहर वाला बॉन्ड कर दिया मैंने. एक नीचे भी ये बॉन्ड है, तो एक नीचे भी बॉन्ड कर दिया मैंने यहाँ पे. राइट. फिर एक ये वाला बॉन्ड है कार्बन, ये वाला बॉन्ड है. फिर ये हो गया मेरा दूसरा वाला कार्बन, ये वाला. ये कौन सा है? ये वाला. नाउ फिर से इसके साथ कौन है? इसके साथ मेरा ये वाला बॉन्ड है. इसके साथ मेरा ये वाला बॉन्ड हो गया. ये कौन है? ये. करेक्ट. अभी ये दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए इसको थोड़ा ब्यूटीफुल बना देते हैं. सर व्हाई यू रोट सी देयर? क्या हुआ? सर आपने और सी क्यों लिखा? नहीं, COOH है ना, वो C और H नहीं है. मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है ना, दैट इज COOH. इसके लिए वो COOH लिखना पड़ा. देखो कब नहीं लिखना है? जब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो तो नहीं लिखना है. अगर दूसरा एलिमेंट आ जाता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया कार्बन के साथ, तो वो तो लिखना पड़ेगा फिर कार्बन तक. ओके, लिख सकते हो. ओके, नाउ फिर अगर तुमको नहीं लिखना है उसका भी तरीका है. ऐसा नहीं है कि हमेशा लिखना है. देखो ये भी करेक्ट है, ऐसे भी कुछ बुक्स में लिखा जाता है और कुछ बुक्स में जैसे बिना सी का भी लिखा जा सकता है. उसको मैं दिखाता हूँ अभी. देखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे. ये क्या है? ये वाले 2 पॉइंट्स है. राइट. तो मैं नंबर कर देता हूँ. चलो 1, ओके, 2, 3 नंबर कर दिया. तो ये हो गया मेरा 1, ओके, ये हो गया 2 और ये हो गया 3. हो गया यहाँ तक क्लियर? 1, 2, 3. राइट. 1 से 2 लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो 1 से 2 लाइंस मैंने भी ओरिजिनेट कर दिए. राइट. सो लेट्स कम डाउन अगेन. ओके, यहाँ तक आते हैं अभी वापस. ये 1 से 2 लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं. राइट. तो ये 1 से 2 लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ये 2 है, इसके लिए ऐसा लिख दिया इसको. ओके. ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ शोइंग बेंट लाइंस. ये सीधा लाइन दिखाना ना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सीधा लाइन तो ट्रिपल बॉन्ड होता है तब दिखाते हैं हम लोग. सिंगल बॉन्ड्स को यूजुअली हम लोग ना ऐसे दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है. ठीक है. ओके, सो ऐसा हो गया अभी. अब जैसे तुम लोग कुछ बोल रहे थे कि कार्बन क्यों लिखा है आपने, ये वाला जो 3rd कार्बन है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. कार्बन को अगर नहीं लिखना है तो तरीका है उसका भी. कैसे करेंगे? देखो, ये जो COOH है वो COOH ऐसा होता है. COOH ऐसा होता है. COOH we will do it in detail later, but फिलहाल मैं बता रहा हूँ बस दिखाने के लिए. ये होता है COOH. ठीक है. तो ये C को अगर तुमको नहीं दिखाना है तो तुम क्या करोगे? ये 3rd वाले पे C नहीं लिखोगे,
सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड O डालोगे और इसी से यहाँ पे OH नहीं लिखा ना अभी मैंने C, तो C के बिना भी कर सकते हैं. क्लियर? एनी डाउट इन दिस? No, sir. Right? One more example of this kind. If I tell you, write the bond line formula for this one. अगर मैंने इसके लिए बोला, write the bond line formula. Right? So let's try this one now. Let's try this one now. फिर से मैं नंबर कर देता हूं. चलो ये वाला, राइट, 1 मानो ये वाला तो डॉट, ये वाला डॉट, इसके साथ कौन है जुड़ा? 2 जुड़ा हुआ है, तो 1 और 2 ऐसा कर दिया, 1 और 2, राइट, ये 1 और ये 2. देखो यहाँ पे 1 ये है, ये 2 है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 और 2 कर दिया. सर आपने बीच में बॉन्ड नहीं बनाया. बनाया ना, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड तो बनाया है. नहीं, लेफ्ट साइड में CH3 ये वाला बोल रहे हो? डबल बॉन्ड हो, ये वाला बोल रहे हो ना, CH3 और CH के बीच में. वो नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा. सिंगल बॉन्ड्स को हम लोग नहीं भी दिखाते हैं तो भी चलेगा. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. रिमेंबर दिस, कंडेंस फार्मूला में ना अगर तुम सिंगल बॉन्ड्स नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, बट डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स को दिखाना पड़ता है. ओके, अगर ये वाला बॉन्ड नहीं भी ड्रॉ किया ना तो भी चलेगा. किसमें? कंडेंस में. बट ये यहाँ पे तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा ना. यहाँ पे तो 1 और 2 के बीच में ड्रॉ कर दिया है मैंने. ओके, सो 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है. चलो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया मैंने, ये 3 हो गया. ओके, फिर 3 और 4 के बीच में वापस से एक सिंगल बॉन्ड है, सो 3 और 4 के बीच में वापस से एक सिंगल बॉन्ड है. ओके, इसको 4 नाम दे दिया, ये वाला 4. अब ही आया, इसी 4 वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, तो इसी वाला 4 के साथ डबल बॉन्ड O है, राइट. और इसके साथ हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, नो प्रॉब्लम. दिस इज आल्सो करेक्ट, राइट. और सम बुक्स आल्सो राइट इट लाइक दिस, ये हाइड्रोजन भी दिखा देते हैं, ये भी करेक्ट है. सर अगर OH दोनों है तो फिर हम हाइड्रोजन दिखा सकते हैं ना? हाँ हाँ करेक्ट. कार्बन के साथ बस अगर बस हाइड्रोजन है तब नहीं दिखाएंगे, बट अगर OH हाँ है तो करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली. कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो दिखाना कभी नहीं है. जो भी हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बन के साथ लिंक्ड है उसको दिखाना नहीं है, जैसे जितने भी तुमको दिख रहा है. लेकिन अगर ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है तो वो दिखाना पड़ेगा. और नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो भी दिखाना पड़ेगा. ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो भी दिखाना पड़ेगा. यानी जो भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस हाइड्रोजन को दिखाना नहीं है बस. सर हम लोग ने जो अभी जो बॉन्ड लाइन बनाया ना, उसमें हमने डबल बॉन्ड O किया ना, उसी के जगह डबल बॉन्ड OH कर देते तो चलता है? नहीं 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 नहीं, OH नहीं है ना यहाँ पे. किधर OH है? ये जो कंडेंस फार्मूला है तुमको OH तो नहीं है, इट इज ओनली डबल बॉन्ड O. यू कैन नॉट मेक इट OH ना. OH तो है नहीं. OH अगर लिखा रहेगा तो ही OH सिंगल बॉन्ड रहेगा. वो O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा. ये तो डबल बॉन्ड O है. ओके, क्लियर अभी तक सबको? एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर. अभी थोड़ा इजी पड़ रहा है बॉन्ड लाइन और कंडेंस. इज इट बिकमिंग इजी नाउ? Yes, sir. ओके फाइन. अभी देखो अगर मैं ये लिख दूं, ट्राई करो अभी इसका बनाने का. अगर मैंने ऐसा लिख दिया, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, इसका बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला ट्राई करते हैं. राइट, एज आई सेड, अगर यहाँ पे CH3 के बाद ब्रैकेट डाल के 3 या 2 है, मतलब वो क्या है, उसके उतने यूनिट्स इस वाले के साथ जुड़े हुए हैं. राइट, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, CH3
नीचे भी एक CH3, इस यहाँ पे भी एक CH3 और फिर OH। ऐसा लिख सकता हूँ मैं कंडेंस फार्मूला को, ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। कंडेंस फार्मूला को थोड़ा सा ये करके दिखाया मैंने, तो ये भी कर सकते हैं ना। सर वो बॉन्ड क्यों नहीं है C और CH3 के नीचे, मतलब कौन सा बॉन्ड है ना, 4 बॉन्ड इस वाले कार्बन के बाजू में। सर नहीं, वो CH3 और C में वो लाइन यहाँ नहीं पे है। यहाँ पे आई टोल्ड यू ना, अगर नहीं भी दिखाते सिंगल बॉन्ड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आई कैन नॉट पुट एनी वेकेंसी, यहाँ पे आई हैव टू शो अ लाइन, दैट्स व्हाई आई शो। अगर थ्राइस या ट्वाइस करके लिख रहे हो ना, तो थ्राइस और ट्वाइस के बीच में अगर लाइन नहीं भी दिखाया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। या एनी डाउट? ओके, ये वाला कार्बन जो है अभी, चलो यहाँ पे एक डॉट मार लेते हैं उसके लिए। उस वाले कार्बन से 3 CH3 ऐसे बाहर है, 3 लाइंस, तो एक लाइन बाहर, दूसरा लाइन बाहर, तीसरा लाइन बाहर, और उसी के साथ ये भी लाइन बाहर आ रही है, ये जो C और O के बीच में बॉन्ड है, चलो उसको भी बाहर। अभी O लिखना पड़ेगा, O के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो भी लिखना पड़ेगा। This is the bond length formula for this one. सर डायरेक्शन कभी भी मैटर नहीं करेगा ना? doesn't matter। ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर मानो किसी को ऐसा लिखना है 1 2 3 और फिर OH। सर मेरा जैसे प्लस बन गया, मतलब एक ऊपर एक लेफ्ट एक डाउन और एक राइट। हाँ ठीक है, समझा मैं, प्लस बन गया, मतलब तुमने ऐसे किया इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, ऐसा किया ना तुमने? हाँ सर। हाँ दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट मैं यूजुअली ऐसे दिखाता हूँ, थोड़ा उसको स्लैंट करके, बेंड करके, क्योंकि बुक्स में ऐसा दिखाते हैं इसके, और कुछ कोई इस पे रूल नहीं है, कैसे भी दिखाओ नो प्रॉब्लम, बट इट हैज टू बी करेक्ट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मस्ट बी करेक्ट, number of single bonds must be correct, number of double bonds must be correct, also you have to show oxygen atoms, you have to show the nitrogen atoms, and any atom that is apart from carbon has to be shown, and अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ तो उसको दिखाना नहीं है, लेकिन अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ उसको दिखाना जरूरी है। ओके, नाउ अगले पेज पे जाऊं मैं, नए पेज पे एक नया पार्ट चालू करूं। हेलो, चालू करूं नेक्स्ट पार्ट? यस सर। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी देखो, कार्बन एटम्स की कैटेगरीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टिनरी, ऐसा होता है। क्या क्या होता है? प्राइमरी, अब मैं बोलता हूं तुमको प्राइमरी, 1 डिग्री इज कॉल्ड प्राइमरी। क्या बोलते हैं 1 डिग्री को? प्राइमरी। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं? टर्शियरी। और 4 डिग्री को क्या बोलते हैं? क्वार्टिनरी। राइट, अब लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टिनरी। ओके, अगर मैं तुमको बोलूं प्राइमरी मतलब कार्बन एटम is bonded to only one carbon atom। सेकेंडरी का मतलब क्या होगा? कार्बन एटम
is bonded to 2 carbon atoms. ने डिग्री का साइन क्यों लगाया? भाई उसका सिंबल है, प्राइमरी को रिप्रेजेंट करने का 1 डिग्री बोलते हैं उसको, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, दैट्स द नोटेशन यूज्ड। टर्शियरी का मतलब क्या होगा? कार्बन एटम is bonded to 3 carbon atoms and क्वार्टरली का मतलब क्या होगा? कार्बन एटम is bonded to 4 carbon atoms। अब ये सबसे आसान पार्ट है, तो ये कर लेते, खत्म कर लेते। अगर मैं तुमको बोलूं CH3 CH2 CH CH3 CH3, अगर ऐसा कुछ मैंने दे दिया तो मैं बोलता हूँ लेट्स आइडेंटिफाई व्हिच ऑल कार्बन एटम्स आर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। Sir, how C carbon atom can be bonded to 4 carbon atoms? 4 कहाँ? 1 है ना प्राइमरी मतलब। Sir, I am talking about quaternary. क्वार्टरली बोल रहे हो ना, आते हैं ना। अब अगर ये एग्जांपल दे दिया तुमको क्वेश्चन में और बोल दिया हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन योर मॉलिक्यूल, तो क्या आंसर देंगे? देखो अभी क्या आंसर देंगे, दिखा देता हूं मैं। ये वाला जो कार्बन है ये किसके कितने कार्बन एटम्स के साथ लिंक्ड है? दिस इज लिंक्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम, दैट इज दिस वन। ये सिर्फ इसके साथ ही तो लिंक्ड है ना, बाकी तो 3 हाइड्रोजन एटम्स है। दैट मींस दिस कार्बन एटम is a 1 degree carbon atom. This carbon atom is connected to 2 carbon atoms. कैसे? देखो, this is connected to this also and it is connected to this carbon atom also. तो यानी ये वाला जो कार्बन है ये दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। Any doubt anybody has? Okay, this carbon, ये वाला जो कार्बन है this is bonded to 3 carbon atoms, क्योंकि एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो मुझे एक डाउट है। हाँ सर, वो जो कार्बन एटम है वो नेसेसरीली कार्बन एटम से ही बॉन्डेड रहेगा, CH2 के H से बॉन्डेड नहीं रहेगा ना? नहीं, हमको बस इतना देखना है कि वो कितने कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, बस इतना ही। ओके, बाकी किसके साथ जुड़ा हुआ है वो नहीं देखना है। Okay, for comparing primary, secondary, tertiary and quaternary, you just have to look at the number of carbon atoms to which 1 carbon atom is joined. सर इसमें बॉन्ड लाइन फार्मूला ज्यादा काम नहीं आएगा करने? हाँ, उसमें उससे भी पूछ सकते हैं। यस, कोई भी दे सकता है एग्जाम में, बॉन्ड लाइन फार्मूला भी दे सकते हैं, कंडेंस भी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर मैंने ऐसे करके पूछा ये वाला, तो ये वाला कार्बन एटम टर्शियरी हो जाएगा, क्योंकि this is linked to 1, 2 and 3 carbon atoms. Coming to this one, ये वाला जो कार्बन है it is linked to only 1 carbon atom, यानी ये और ये बॉन्डेड है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में। So ये क्या हो जाएगा? It's a 1 degree carbon atom. Coming to the last one, this one, ये वाला, ये जो कार्बन एटम है this is bonded to only 1 carbon atom, तो ये भी क्या हो जाएगा? This will also be a 1 degree carbon atom. तो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन एटम समझाए। बाकी रहता है क्वार्टरनरी 4 डिग्री, चलो उस पे जाते हैं। एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? नो सर। ये सबसे आसान पार्ट है, क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, लेट्स कम टू वन वर्ड एग्जांपल। अगर मैंने ऐसा कर दिया, अगर ऐसा कोई एग्जांपल है, चलो इस पे करते हैं। इसमें लेट्स आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। ये वाला कार्बन जो है ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये वाले कार्बन के साथ। सो दिस वन इज गोइंग टू बी अ 1 डिग्री कार्बन एटम। ये वाला जो कार्बन है, नाउ लुक केयरफुली, दिस इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम्स, एक इसके साथ, एक इसके साथ
एक इसके साथ और एक इसके साथ. So this becomes a 4-degree carbon atom. This becomes again a 1-degree carbon atom because this is again bonded to only one carbon atom. अब ये वाला कार्बन पे आते हैं, ये वाले पे. ये वाला भी 1 डिग्री हो जाएगा because this is only connected to one carbon. ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, क्योंकि this is bonded to this carbon as well as this carbon. So this carbon atom becomes a 2-degree carbon atom. Last one, ये वाला, this is again 1 degree, क्योंकि this is again linked to only one carbon atom. Okay, any doubt in this part? Sir, Yes. so here you have taken into account only single bonds. So if there are double bonds, then Then also हमको तो बस ये देखना है ना कि कितने कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है वो. मतलब प्रोसीजर तभी सेम ही रहेगा ना? हाँ हाँ, कितने कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, that is the primary concern. ये दो एग्जांपल्स कॉपी कर लो. Okay. आगे बढ़ूं? Any doubt? No, sir. Okay. All right. Now see, if I am telling you what is the meaning of this particular term, इसका मतलब क्या है इस वाले टर्म का? इस टर्म का मतलब है these compounds contain only carbon and hydrogen. No other element is present. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि जो कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब अगर होंगे तो उसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते. ओके, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू व्हाट अबाउट दिस, is this a hydrocarbon? no, sir. This is not No, a sir. hydrocarbon. This is not a hydrocarbon. Okay, क्योंकि इसमें देखो ऑक्सीजन भी आ गया, भले ही इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, but this is not a hydrocarbon because you have another element which is different. ऑक्सीजन atom present हो गया.
तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। ओके, नाउ हम लोग सबसे पहले नोमेनक्लेचर में हाइड्रोकार्बन चालू करेंगे, यानी हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर हम लोग पहले करेंगे और उसके बाद बाकी स्पीशीज का नोमेनक्लेचर करेंगे। The basics that are just required for understanding nomenclature. अभी तक nomenclature चालू नहीं हुआ है, हम लोगों ने फिलहाल बस कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, हाइड्रोकार्बन, राइट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब देखा है। We will start with nomenclature now because these basics are required for understanding nomenclature. तो पहले हम लोगों ने इसके लिए ये सब किया। सर अगर एक कार्बन एटम डबल बॉन्डेड होगा तो उसका डिग्री कितना होगा? तो वही मैं बोल रहा हूँ, you have to look at the number of carbon atoms to which it is linked. That's all. अगर कार्बन एटम जो भी है उस कार्बन एटम के साथ कितने कार्बन एटम्स बॉन्डेड है वही देखना है तुमको। ओके, वो डिपेंड करेगा कि उसके साथ कितने कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं उस पे, है ना। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने जुड़े हुए हैं एक कार्बन एटम के साथ, वो डिपेंड। क्या 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 सर वो 5 अच्छा, बॉन्ड। ओके ओके, अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी, सो दैट राइट। तो अभी हम लोग करेंगे बेसिक रूल्स तो बहुत सारे हैं वैसे, बट जब जो ये है बेसिक्स है वो हम लोग चालू करेंगे। रूल्स तो काफी सारे हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन्स में वही होते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। नाउ दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैव ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स ओनली, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। राइट, और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी है, ओके, डबल और ट्रिपल और बोथ, देन इट विल बी unsaturated hydrocarbons. Right? सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स है या सिर्फ डबल बॉन्ड है या सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड है तो भी उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही बोलना है। एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो भी अनसैचुरेटेड, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो भी अनसैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल दोनों आ गए तो भी अनसैचुरेटेड। ओके, दिस पार्ट इज क्लियर। अभी आपको एक बेसिक में बता देता हूँ चीज, उसका यूज करके हम लोग आगे सब कुछ करेंगे, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ। Based on the number of carbon atoms, you will use some words. Okay. अगर कार्बन एटम्स एक है तो उसके लिए अलग वर्ड, कार्बन एटम्स दो है तो उसके लिए अलग वर्ड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्ड्स यूज करते हैं अगर नोमेनक्लेचर करना है तो कार्बन एटम्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे चेन का जो नाम होगा, जो कंपाउंड का नाम होगा वो क्या होगा। दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द number of carbon atoms. That is one basic criterion for understanding the name of a compound. So some words are used जो IUPAC, जैसे मैंने आपको बोला IUPAC ने जो rules दिए हैं उसके हिसाब से। So I'll just give that. Many of you must be aware of it, but फिर भी मैं दे देता हूँ, right? That is this. Just make a table. If you want, you can make a table, right? ऐसा टेबल में दो कॉलम्स आप कर सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और दूसरा वर्ड और रूट टू बी यूज्ड। अगर कार्बन एटम 1 है तो वर्ड कौन से यूज होता है? विथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 2 है तो इट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 3 है तो प्रोप। अगर सर मेथाम्फेटामिन क्या होता है? क्या क्या क्या?
भाई क्या पूछ रहा है? अरे तूने ही मुझे भेजा था फॉर्मूला, एक कुछ मिनट, मुझे क्या क्या समझ नहीं आया। डाउट बोलो पहले, जल्दी करो क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। बताओ क्या है नहीं सर, डाउट? बाद में पूछ लेंगे, आप ये लिखा दो पहले। हाँ 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 हाँ, 5 है तो पेंट, ये तो 10th स्टैंडर्ड में किया होगा बहुत लोगों ने, फिर भी मैं दे देता हूँ हमेशा। सर किया है। हाँ फिलहाल इतना तक काफी है। ओके, so based on the number of carbon atoms we have to use these words. ये पूरे के पूरे चैप्टर में ही होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के लिए है। ये वर्ड्स जो है वो थ्रू आउट द चैप्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड। कोई भी चैप्टर नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन हो, ये वर्ड्स तो आएंगे आएंगे। इसके लिए पहले ये आपको थरो होने हैं 1 से लेकर 10 तक। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, तो बता देता हूँ। Please don't do that mistake. It is only HEP. Don't use SEPT. Okay, ये नहीं करना है, ये वाला गलत है, ठीक है? कुछ लोग करते हैं। It's HEP, HEPT. ओके, यहाँ तक हो गया लिखना? Any doubt? यहाँ तक लिखना हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, just one more thing I'll make you write. Okay. Main chain. Okay. Main chain is our first task. फर्स्ट टास्क मतलब क्या है? कोई भी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन अगर आता है तो फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई द मेन चेन, ओके, एंड द नेक्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये क्या है वो करेंगे। व्हाट आर सब्स्टिट्यूएंट्स? ऑल दोज species which are not a part of main chain। जो भी चीज मेन चेन के अंदर नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट। ये टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, नहीं तो बाद में आपको जब हम लोग ये टर्म्स यूज करेंगे पता नहीं होगा, इसके लिए मैंने बता दिया। मेन चेन और मेन चेन के बाहर जो भी है या मेन चेन के अंदर जो भी नहीं है उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। So the first task is to identify the main chain and the next task is to identify the substituents. ये होता है आपका procedure for doing any question on nomenclature. Now we will discuss these things in detail in the next lecture. अभी तो lecture खत्म हो गया।
किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अपने लास्ट मेन चेन क्या करा है? हाँ। सर मैं 3 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी क्या कराया था आपने? नहीं मैंने बस ये कराया, ये जो दिख रहा है ना लास्ट का जो पेज है देखो अभी दिख रहा है यहाँ पे मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स लिखा हुआ है ना, राइट। हाँ तो मैंने सर। ये बताया कि कोई भी क्वेश्चन हो IUPAC के नोमेनक्लेचर का, वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई आवर मेन चेन। ये ध्यान में रखना है हमेशा कि कोई भी क्वेश्चन हो, हमारा पहला काम हमेशा मेन चेन आइडेंटिफाई करना होता है। मेन चेन आइडेंटिफाई करने के बाद जो नेक्स्ट टास्क होता है दैट इज टू आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट, वो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। Whatever is not a part of the main chain, that is called what? Substituent. जो भी मेन चेन के अंदर नहीं है, मेन चेन के बाहर लाई कर रहा है, ओके, उसको बोलते हैं क्या? सब्स्टिट्यूएंट। सो इफ आई टेल यू दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, इमीडिएटली यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि हाँ मतलब ये मेन चेन का पार्ट नहीं है, ये मेन चेन के बाहर लाई कर रहा है। दैट इज व्हाई आई गिव यू द टर्म्स। काफी लोगों को सब्स्टिट्यूएंट टर्म में प्रॉब्लम होता है, इसके लिए मैंने फर्स्ट डे पे ही बोल दिया। सब्स्टिट्यूएंट मतलब एनीथिंग व्हिच इज outside the main chain, that is not a part of our main chain, उसको क्या बोलेंगे? Substituent. सर ये सब IUPAC रूल्स है ना? हाँ IUPAC पूरा चैप्टर IUPAC रूल्स पे ही है। सर इसका कुछ अलग से नाम है या फिर ऐसे ही कुछ टॉपिक टाइप है? Name of the chapter is IUPAC nomenclature. ओके सर। चैप्टर का नाम वही है, IUPAC nomenclature. एंड मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स क्या-क्या होते हैं वो तो हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चंस चालू करेंगे और रूल्स पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा कि क्या-क्या सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, क्या-क्या मेन चेन होते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि ये 1 से लेकर 10 तक यानी मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये वाला जो पार्ट है वो आपको हमेशा फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। Any doubt anybody has? Any doubt? No चलो sir. एक मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है? Because I think next week we'll have our next lecture. तब तक एक होमवर्क दे दो, एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। हाँ आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर नेक्स्ट लेक्चर कब है आपका? आई डोंट नो, अभी तक टाइम टेबल मेरे पास तो नहीं मिला है, तुम लोग के पास रहेगा शायद। ओके एक मैं देता हूँ होमवर्क यहाँ पे। Just try to make the bond line formula for this one. Try to make the bond line formula for this compound. Okay. अगर अभी टाइम है तो अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। हाँ अभी डिस्कस करना है तो अभी कर सकते हैं। सर CH2 और CH3 में बीच में ये है ना? हाँ इफ सिंगल बॉन्ड दिखाते नहीं है ना हमेशा, तो नहीं दिखाया तो भी चलेगा, इट्स ओके। CH2 और CH3 के बीच में जो सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाया है मैंने,
दैट्स ओके, नहीं दिखा सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। सर बना लिया। करूँ डिस्कस अभी, आंसर दूं इसका, सबको दूं, सबका हो गया बना के? हाँ सर हो गया। शुरुआत में थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने सोचा कि ओके लेट्स स्टार्ट। इसको मैं अगर एक डॉट मानता हूँ इस वाले को, तो चलो मैंने एक डॉट बना दिया इसका, ठीक है। यहाँ से एक ऐसा, राइट, एक ऐसा, ये कौन से है, तो नंबर कर देता हूँ मैं, ये ए, ये बी, ये बी, राइट। नाउ यहाँ से देखो ये भी आ रहा है जिसको सी, और ये कार्बन है तो टी, तो यहाँ पे सी और सी के साथ टी। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? एनी डाउट? नो सर। राइट, नेक्स्ट आगे क्या है, इसके साथ ये ओ है, चलो इसके साथ हम लोग ओ को बना देते हैं, राइट। और ओ के साथ क्या है, ये है ई, तो ओ के साथ ये है ई। ये ई एफ ए बी सी डी बस मैं अपने कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में नहीं करना है आपको, डोंट डू दिस, ओके। ये बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं। ई के साथ एफ, तो ई के साथ एफ, और ई के साथ ही और एक जी भी है, तो ई के साथ भी और एक मैं जी, हो गया, राइट। सम पीपल may write it like this also, ऐसा ऐसा ऐसा, right? ऐसा 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 ऐसा, ऐसे भी कुछ लोग लिखें, कैसे भी लिखो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। ये भी सही है, वो भी सही है। कुछ लोग बोलेंगे हमको ऑक्सीजन को नीचे दिखाना है, तो चलो दिखाओ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नीचे दिखाना, तो नीचे दिखा देंगे कुछ को, राइट। ऐसा all these are correct. All these are correct. Okay. Any doubt? सबको क्लियर हो गया ये? Yes sir. Yes, sir. लेक्चर पसंद आया? यस सर। हाँ सर। Yes, क्लियर हो sir. गया ना, जो भी है वो क्लियर हो गया ना, जस्ट प्रैक्टिस करो, ओके। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आज जो भी करवाया है एक बार थोड़ा सा उसको गो थ्रू कर लो नेक्स्ट लेक्चर के पहले, क्योंकि आज जो था वो प्रीलिमिनरी पार्ट था, इंट्रोडक्शन था, ओके। तो जो मेन आईयूपीएससी का पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर से ही आपका चालू होगा, आज तो बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप का था। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर आप Thank ये you, नोट sir. सेंड कर दोगे? क्या क्या क्या